اسلام آباد کے بلو ایریا میں واقع سکندر کارپوریشن کی 35 منزلہ فلک بوس عمارت اس وقت صبح کے سورج کی کرنوں میں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس عمارت کی 20ویں منزل پر موجود ایگزیکٹو فلور کا ماحول کسی قبرستان سے زیادہ مختلف نہیں تھا، جہاں موت کا سا سکوت طاری تھا اور وجہ صرف ایک تھی: شاہ زین سکندر، 35 سالہ CEO، جس کی شخصیت میں ایک ایسا روب اور دبدبا تھا کہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز بھی اس کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ تولتے تھے۔ وہ وقت کا اتنا پابند تھا کہ لوگ اپنی گھڑیاں اس کے آنے جانے کے وقت سے ملاتے تھے اور غلطی کی گنجائش اس کی لغت میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ آج صبح بھی فلور پر ہو کا عالم تھا، کیونکہ ہٹلر راؤنڈ پر تھا۔ شاہ زین سیاہ رنگ کے 3 پیس آرمنی سوٹ میں ملوث تھا، جس کی تراش خراش بتا رہی تھی کہ وہ کسی عام درزی کا شاہکار نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ناگواری اور سنجیدگی کا ماسک چڑھا ہوا تھا، اور گہری بھوری آنکھیں عقاب کی طرح ہر ملازم کی کارکردگی اور میز کی صفائی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا سیکرٹری جمیل فائلز کا پلندہ اٹھائے پسینے میں شربور بھاگ رہا تھا، حالانکہ AC کا درجہ حرارت 16 پر تھا۔ مسٹر جمیل، شاہ زین کی بھاری اور سپاٹ آواز سناٹے میں گونجی، میں نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی فائل 8:55 پر مانگی تھی اور ابھی 9:02 ہو چکے ہیں۔ یہ 7 منٹ کی تاخیر آپ کی سیلری سے کٹوتی کا سبب بن سکتی ہے۔ جمیل کے ہاتھ کانپ گئے۔ سر وہ مس ثنا پرنٹ لے کر آ رہی ہیں، بس لفٹ میں ہیں۔ شاہ زین نے اپنی مہنگی کلائی گھڑی پر نظر ڈالی اور ایک سرد آہ بھری۔ مجھے وجوہات نہیں، نتائج چاہیے مسٹر جمیل۔ اگر 1 منٹ میں فائل نہ پہنچی تو؟ ابھی اس کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ کوریڈور کے آخری سرے سے لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک زرد طوفان اندر داخل ہوا۔ یہ طوفان 22 سالہ مشال حیات تھی، جس کا آج اس کمپنی میں پہلا دن تھا، اور بدقسمتی سے وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ مشال نے شوخ پیلے رنگ کا کرتا اور سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، گلے میں رنگ برنگے موتیوں کے مالا تھی اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے لٹک رہے تھے جو اس کے ہر تیز قدم پر چھن چھن کر رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کا بیگ تھا جو کندھے سے پھسل رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈسپوزیبل کافی کا مگ تھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ ہانپ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی، یا اللہ میری مدد کرنا، یہ لفٹ بھی کچھوے کی طرح چلتی ہے، اور وہ رکشے والا انکل تو لگتا ہے اسلام آباد کی سیر کروا رہا تھا۔ اگر اس کھڑوس باس نے دیکھ لیا تو میری تو شامت آ جائے گی۔ مشال اپنی دھن میں مگن تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس فلور پر موجود ہے وہاں اونچی آواز میں سانس لینا بھی منع ہے۔ وہ تیزی سے کوریڈور کے موڑ پر مڑی جہاں شاہ زین سکندر کھڑا مسٹر جمیل کی کلاس لے رہا تھا۔ مشال کی رفتار تیز تھی اور نظر گھڑی پر۔ بس 5 منٹ لیٹ ہوں، کچھ نہیں ہوتا مشال، ہمت کرو، مسکرا کر گڈ مارننگ کہنا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اچانک ایک سخت آہنی دیوار سے ٹکرائی۔ ٹھائیں! ٹکر اتنی زوردار تھی کہ مشال کا توازن بگڑا اور اس کے ہاتھ میں موجود گرم گرم کیپوچینو کا مگ ہوا میں اچھلا اور کشش شکل کے قانون کے تحت سیدھا نیچے آیا، مگر زمین پر نہیں بلکہ شاہ زین سکندر کی بے داغ سفید قیمتی شرٹ پر۔ چھپک! گرم مایا گرنے کی آواز کوریڈور کے خوفناک سناٹے میں بم پھٹنے کی طرح گونجی۔ کافی شاہ زین کے سینے سے ہوتی ہوئی اس کے کوٹ اور پینٹ تک پھیل گئی اور سفید شرٹ پر ایک بدنما بھورا نقشہ بن گیا۔ وقت تھم گیا، مسٹر جمیل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آس پاس کے کیبن سے ملازمین نے گردنیں نکال کر دیکھا اور پھر خوف سے آنکھیں بند کر لی کہ اب دھماکہ ہوگا۔ شاہ زین سکندر ساخت کھڑا تھا، اسے گرم کافی کی تپش اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس سے زیادہ تپش اس کے دماغ میں تھی جو غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی نگاہیں نیچے جھکائی اور اپنے برباد شدہ لباس کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے سر اٹھا کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو پیلے رنگ کے لباس میں ملوث کسی لیڈی برڈ کی طرح لگ رہی تھی اور جس کے ہاتھ میں خالی کافی ابھی بھی موجود تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! مشال کے منہ سے نکلا۔ اس نے جلدی سے کپ سائڈ پر پھینکا اور اپنے بیگ سے ٹشو پیپر نکالنے لگی۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں چلا کہ دیوار کے آگے کوئی کھڑا ہے، میرا مطلب ہے آپ کھڑے ہیں۔ مشال بوکھلاہٹ میں کیا کہہ رہی تھی اسے خود نہیں پتا۔ شاہ زین کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کی مٹھیاں بھنج گئی۔ تم! اس کے حلق سے ایک گرجدار آواز نکلی جیسے شیر دہاڑنے سے پہلے گھرایا ہو۔ تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟
चलते हुए, ये कंपनी है या कोई रेस ट्रैक? मिसाल ने जल्दी से टिशू का बोर्ड डब्बा निकाला और शाहजैन के सीने की तरफ बढ़ाया। सर, वो असल में ब्रेक नहीं लगी थी। मैं साफ कर देती हूँ, रुकें, हिले मत। उसने टिशू शाहजैन की शर्ट पर रगड़ना शुरू कर दिया, जिससे वो दाग साफ होने के बजाय मज़ीद फैल गया और टिशू के सफ़ेद जर्रे गीली शर्ट पर चिपक गए। शाहजैन को लगा कि कोई इसकी इज्जत नफ्स को टिश्यू पेपर से रगड़ रहा है। इसने झटके से मिशाल का हाथ पकड़ा और उसे दूर धकेला। दूर रहो मुझसे, शाहजैन दहाड़ा। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि फ्लोर की खिड़कियां लर्ज़ गई। मिशाल लड़खड़ा कर पीछे हुई और दीवार से जा टकराई। सर, चिल्ला क्यों रही हैं? गलती से ही गिरा है ना, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना नहलाया है आपको कॉफ़ी से। मिशाल ने मासूमियत से सफाई पेश की, जो जलती पर तेल का काम कर गई। शाहजैन ने गहरा सांस लिया। तुम हो कौन और इस फ्लोर पर क्या कर रही हो? सिक्योरिटी कहाँ है? किसने इस कार्टून को अंदर कैसे आने दिया? शाहजैन ने इसके पीले लिबास की तरफ इशारा किया। कार्टून? मिशाल को अपनी तौहीन महसूस हुई। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं कार्टून नहीं हूँ, मैं यहाँ नई ज्वाइनी हूँ। आज मेरा पहला दिन है, मेरा नाम मिशाल हयात है। उसने अकड़ कर अपना तारुफ करवाया। पहला दिन, शाहजैन ने तंज़िया दोहराया, और आखिरी दिन भी। तुम अभी और इसी वक्त फारिग हो। यू आर फायर्ड, गेट आउट। शाहजैन ने उंगली से लिफ्ट की तरफ इशारा किया। मिशाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फायर्ड? अभी तो इसने ज्वाइनिंग भी नहीं दी थी। उसे अपने घर के हालात याद आए। बाप का कर्जा, माँ की दवाइयाँ और मकान मालिक की धमकियाँ। इसका चेहरा फक हो गया। सर प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं आपकी शर्ट के पैसे दे दूँगी, तनख्वाह से काट लीजिएगा, मगर मुझे निकाले मत। मिशाल ने मिन्नत की। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर शाहजैन सिकंदर के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी शर्ट की कीमत तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह से ज़्यादा है लड़की, और मुझे पैसों का नहीं, डिसिप्लिन का मसला है। जो लोग चलना नहीं जानते वो काम क्या खाक करेंगे? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। शाहजैन ने बेरहमी से फैसला सुनाया और मुड़कर अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। वैसे भी अंकल, मिशाल ने रोते हुए दिल में सोचा कि अब तो जा रही हूँ तो कुछ कह ही दूँ। वैसे भी अंकल, दाग तो अच्छे होते हैं। सुना नहीं सर्फ एक्सल वालों का इश्तिहार? आप पर यह ब्राउन शेड जच रहा है। यकीन करें, थोड़ा रंग आ गया है आपके ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में। शाहजैन के कदम रुक गया। वो मुड़ा और उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। क्या कहा तुमने? अंकल? हाँ तो और क्या कहूँ, इतना गुस्सा तो सिर्फ अंकल्स को ही आता है जिनका बीपी हाई रहता हो। मिशाल ने आंसू पोंछते हुए आखिरी वार किया और लिफ्ट की तरफ भाग गई। इससे पहले कि शाहजैन का गुस्सा फट पड़ता, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। शाहजैन गुस्से से कांपता हुआ अपने कैबिन में घुस गया। मिशाल रोती हुई इमारत से नीचे उतरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर क्या मुँह लेकर जाएगी। माँ को क्या बताएगी कि पहले ही दिन काफ़ी गिराने पर नौकरी गई। लिफ्ट ख़राब थी, इसलिए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ताकि आंसू छुपा सके। वो दूसरी मंजिल पर पहुंची तो देखा कि एक बुजुर्ग खौतून, जो काफ़ी नफीस और वक़ार वाली लग रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उनके हाथ में एक छड़ी थी और वो हाँप रही थी। लिफ्ट ख़राब होने की वजह से शायद वो पैदल ऊपर जा रही थी। अचानक उनका पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि मिशाल ने बिजली की तेज़ी से अपना बैग फेंका और आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। संभल कर अम्मा जी। मिशाल ने उन्हें सहारा दिया। और सीढ़ी पर बिठा दिया। आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? मिशाल ने फिक्रमंदी से पूछा। बुजुर्ग खातून ने गहरा सांस लिया और मिशाल के बाजू को मजबूती से थाम लिया। जीते रहो बेटा, तुमने बचा लिया, वरना आज तो हड्डियां टूट जाती। ये लिफ्ट भी ऐन वो मौके पर ख़राब हो जाती है। ये बेगम सिकंदर थी, शाहजैन की वालदा, जो अपने बेटे को सरप्राइज़ देने आई थी, मगर लिफ्ट की खराबी ने उन्हें सरप्राइज़ दे दिया था। मिशाल ने जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। ये लें, पानी पिए, आपका सांस फूल रहा है। बेगम सिकंदर ने पानी पिया और मिशाल के मासूम और फिक्रमंद चेहरे को गौर से देखा। तुम यहाँ काम करती हो बेटा? उन्होंने पूछा। मिशाल के चेहरे पर साया आ गया। करती थी अम्मा जी, मतलब आज पहला दिन था, मगर उस खड़ूस हिटलर बॉस ने निकाल दिया। मिशाल ने गुस्से से कहा। बेगम सिकंदर के कान खड़े हुए। खड़ूस बॉस?
कौन? वही जो सबसे ऊपर बैठता है, नाम पता नहीं क्या है, सिकंदर, मगर है पूरा जलाद। कसम से अम्मा जी, शक्ल से ही ऐसा लगता है जैसे करेले का जूस पी कर आया हो। छोटी सी गलती हुई, काफ़ी गिर गई तो ऐसे चीखा जैसे मैंने बम फोड़ दिया हो। गरीब के पेट पर लात मार दी उस जालिम ने। मिशाल ने दिल की भड़ास निकाली। मैंने उसे अंकल क्या कह दिया, उसकी तो जैसे दुम पर पाँव आ गया। बेगम सिकंदर की आंखों में एक शरारत भरी मुस्कुराहट आई। वो समझ गई थी कि ये किसकी बात हो रही है। अच्छा अंकल कहा तुमने? फिर तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने मिशाल को मजीद करेदा। हाँ ना, अब मैं क्या करूं? मेरा सर पर इतना कर्जा है, मकान मालिक घर से निकालने वाला है। मुझे ये नौकरी चाहिए थी, मगर इस पत्थर दिल इंसान को क्या परवाह। मिशाल की आंखों में फिर आंसू आ गए। बेगम सिकंदर ने मिशाल का हाथ थामा। उन्हें इस लड़की की सच्चाई और जिंदा दिली भा गई थी, और सबसे बढ़कर ये कि उसने उनकी मदद की थी। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? बेगम सिकंदर ने पूछा। हाँ, मगर अब वहाँ कौन रखेगा? मैं रखवाऊंगी, चलो मेरे साथ। बेगम सिकंदर ने ज़बरदस्ती मिशाल का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई ऊपर की तरफ ले चली। अरे नहीं अम्मा जी, वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं दोबारा वहाँ नहीं जा रही। मिशाल ने मज़ाहमत की। मैं देखती हूँ कैसे चबाता है, तुम बस मेरे साथ चलो। बेगम सिकंदर में अचानक एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वो मिशाल को लेकर सीधा एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट अब ठीक हो चुकी थी। फ्लोर पर पहुंचते ही मिस्टर जमील ने बेगम सिकंदर को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेगम साहिबा आप? हाँ मैं। शाहजैन कहाँ है? वो कैबिन में है, मगर गुस्से में है। मिस्टर जमील ने मिशाल को बेगम साहिबा के साथ देखकर अपना जुमला अधूर छोड़ दिया। बेगम साहिबा ने दरवाज़ा खोला और धड़ाक से अंदर दाखिल हुई। शाहजैन अभी अपनी शर्ट साफ करके कोट पहन रहा था। दरवाजे खुलने पर वो दहाड़ा, जमील मैंने कहा था। मगर सामने अपनी माँ को देखकर वो साख्त रह गया, और फिर इसकी नज़र माँ के पीछे छुपी मिशाल पर पड़ी, जो डर के मारे सुकड़ रही थी। मम्मा आप यहाँ, और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसे अभी निकाला था। शाहजैन की तेवरी चढ़ गई। खबरदार जो इस बच्ची को कुछ कहा। बेगम सिकंदर ने शाहजैन के सामने उंगली उठाई। अगर ये ना होती तो आज तुम्हारी माँ अस्पताल में पड़ी होती। सीढ़ियों पर मेरा पाँव फिसल गया था और इसने मुझे बचाया। शाहजैन हैरत से मिशाल को देखने लगा। क्या? हाँ, और तुमने उसे काफ़ी गिराने पर निकाल दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शाहजैन, तुम इतने बेहस कब से हो गए? बेगम सिकंदर ने बेटे को डांटा। मिशाल माँ के पीछे से झांक कर शाहजैन की बेबसी का नज़ारा कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अम्मा जी इस जल्लाद की माँ है। मम्मा ये नाअहल है, इसने मेरी शर्ट खराब की और बदतमीज़ी की। शाहजैन ने दिफा किया। बच्चे गलती करते हैं शाहजैन, तुम खुदा नहीं हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लड़की यहीं काम करेगी, और अभी ये मार्केटिंग में नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट होगी।